بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مریم نواز شریف صاحبہ لاہور کے شہریوں کو خود 13 دسمبر کی دعوت دینے لاہور نکلیں گی، اور یہ ان کی جو ریلی ہے یہ اس کا فیز 1 ہے جو آج ہونے جا رہا ہے، اور جو دوسرا اس کا مرحلہ ہوگا وہ 10 تاریخ کو لاہور شہر کے دوسرے اطراف مریم نواز شریف صاحبہ ریلی کی صورت میں لاہور کے شہریوں کو 13 دسمبر کی باضابطہ دعوت دینے خود جا رہی ہیں۔ اور میں یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ہچکولے کھاتی ہوئی سلیکٹڈ ووٹ چور حکومت کو آخری دھکا دینے کی دعوت دینے مریم نواز شریف صاحبہ آج لاہور شہر میں ریلی کی صورت میں جائیں گی۔ ریلی قائد اعظم انٹرچینج سے شروع ہوتی ہوئی شادرہ چوک میں ختم ہوگی۔ 4 مقامات کے اوپر مریم نواز شریف صاحبہ تقریر بھی کریں گی، خطاب کریں گی، شہریوں کو ملیں گی، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس ہچکولے کھاتی ہوئی سلیکٹڈ ووٹ چور حکومت کو آخری دھکا دینے کی دعوت 13 دسمبر کے جلسے کی دعوت نکلیں گی۔ ان آٹا چینی چوروں کے خلاف، ان گیس بجلی چوروں کے خلاف، ان ادویات کی چوری کے خلاف، 35 روپے روٹی کے خلاف، 90 روپے آٹے کے خلاف، 120 روپے چینی کے خلاف، اور جو ڈاکہ 400 ارب کا ڈاکہ چینی میں اس نالائق، نااہل اور آٹا چینی چور مافیا نے ڈالا ہے، اس کے خلاف 122 ارب کا ڈاکہ خالی LNG کی مد میں، اس کے خلاف 225 ارب کا ڈاکہ آٹے میں، اس کے خلاف آج معیشت تباہ، روزگار تباہ، ملک کے نوجوان کے پاس آج نوکری نہیں ہے، اور ان ووٹ چور سلیکٹڈ ٹولے کو مسلط کرنے کے خلاف 13 دسمبر کو پاکستان میں آئین، قانون اور پارلیمان کی بالادستی کے لیے ان آٹا چینی چوروں کے خلاف پاکستان کے نوجوان، لاہور کے عوام اور جو تمام اطراف سے 13 دسمبر کو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جو تحریک ہے، 13 دسمبر کو اس کا فیصلہ کن گھڑی ہے، اور یہ نالائق، نااہل چور دھمکی کیا دیتے ہیں؟ FIRیں کٹیں گی۔ جس سیاسی مخالف کو آپ نے سزائے موت کی چکی میں رکھا، والد کے سامنے بیٹی کو گرفتار کیا، کسی کی تفریق نہیں کی، اور سیاسی انتقام میں اندھا وزیر اعظم منہ پر ہاتھ پھیر کر جب دھمکی دے دے تو کس چیز کا خوف رہ جاتا ہے؟ کس کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں؟ FIR سے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں؟ جو FIR آپ کاٹیں گے ہم اس کو فریم کرائیں گے، ہم اس کو گلے کا ہار سمجھیں گے۔ یہ FIR پاکستان کی جمہوریت کی تحریک اور پاکستان میں ووٹ کی عزت، چور ٹولے کو گھر بھیجنے، اس میں یہ FIR کسی قسم کا خوف پیدا نہیں کرتی۔ کرائے کے ترجمان، کل مریم نواز کی تقریر کے بعد جو تکلیف ہوئی وہ وفاقی حکومت سے لے کر پنجاب کی حکومت تک تمام کرائے کے ترجمانوں کی چیخوں سے ظاہر تھی، اور اس حکومت کو نہ عوام کی آٹا، روٹی، چینی، روزگار، معیشت کی پرواہ ہے۔ ان کو صرف اپوزیشن، سیاسی مخالفین، اور اب جو خوف ہے
खौफ इन FIR का ऑपोजिशन को नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का खौफ इन वोट चोरों के ऊपर तारी है, वो वजीर आजम से लेकर कराए के तर्जुमान टांगें कांप रही हैं। मैंने पहले मशवरा दिया था कि जैसे जलसा ना रोकने की तजवीज़ दी थी और आखिर में तमाम जलसे हुए। ये FIR का जो मरला है ये गुजरांवाला से शुरू हुआ था, ये कोयटा में गया, ये पेशावर में गया, ये मुल्तान में गया। इससे जलसे नहीं रुक सकते। और इसी तरह जैसे आप अवामी ताकत को नहीं रोक सकते, इसी तरह आज अवाम और अवामी ताकत आपको घर जाने का मशवरा दे रही है, आपको इस्तीफा देने का मशवरा दे रही है। जिस तरह आपको जलसे को ना रोकने की बात समझ आ गई इमरान साहब, उस तरह आपको इस्तीफा देकर घर चले जाने की बात भी समझ आ जानी चाहिए। और कल जिस तरह आपने कहा कि मुंतजमीन और कुर्सियां लगाने वालों के खिलाफ FIR कटेगी, तो ये अवामी तहरीक है, इसमें हम सब मुंतजमीन भी हैं और हम सब जलसे में कुर्सियां भी लगाएंगे, स्टेज भी लगाएंगे और इंशाअल्लाह 13 दिसंबर को आपके खिलाफ जो फैसला कुन घड़ी है उसमें पाकिस्तान की आवाम शामिल होगी। पाकिस्तान की आवाम को आप FIR से कटवाने की कोशिश ना करें। ये वो सियासी जमातों के कारकुन हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बका के लिए, उसकी तकवीयत के लिए जानें कुर्बान की हैं, जिला वतन हुए हैं और इस किस्म की आमराना सोच के खिलाफ जंग लड़ चुके हैं। इनको डराने की कोशिश ना करें। हाँ, बल्कि आपके डरने का वक्त जरूर शुरू हो गया है, क्योंकि जो वोट चोरी करके आता है, जो अवामी मैंडेट के खिलाफ आता है, जिसको मुसल्लत किया जाता है, जिसके पास अवामी ताकत नहीं होती, वो इसी तरह के खौफ में मुब्तला होता है। क्योंकि जो अवामी मैंडेट लेकर आता है, जिसके पास अवाम की ताकत होती है, जो मुंतखब वजीर आजम होता है, वो पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देता है, वो पाकिस्तान की अवाम को 14,000 मेगावाट बिजली देता है, वो पाकिस्तान की अवाम को मोटरवे, ऑरेंज ट्रेन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट देता है, वो पाकिस्तान से दहशतगर्दी खत्म करता है, वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के गरीब को रिलीफ देना जानता है। और वो वजीर आजम, उसको दिन रात सुबह शाम सिर्फ अवाम की सोच होती है। लेकिन जो वोट चोर होता है, जो सिलेक्टेड होता है, जो कश्मीर का सौदा करता है, जो अवाम की आटा चीनी चोरी करता है, जो अवाम की गैस बिजली चोरी करता है, जो अवाम की दवाइयां चोरी करता है, वो वादे तो करता है 1 करोड़ नौकरी के और 50 लाख घर के, लेकिन वो ना एक नौकरी दे सकता है, ना एक घर दे सकता है, क्योंकि उसके पास अवाम की ताकत और अवाम का मैंडेट नहीं होता। यही बात आपको समझाई है, यही बात आपको समझाने जा रहे हैं। इसलिए मैं एक दफा फिर 2 टोक अल्फाज में कहती हूं, 13 दिसंबर को जलसा भी होगा, कुर्सियां भी लगेंगी, स्टेज भी सजेगा और आपके खिलाफ फैसला कुन ऐलान होगा। और आज जैसे मैंने पहले कहा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा खुद लाहौर के शहरियों को ये दावतनामा देने जा रही हैं कि निकलना होगा, आज हर बेटी को निकलना होगा, आज हर बेटे को निकलना होगा, आज हर बुजुर्ग को निकलना होगा, आज हर मां को निकलना होगा, हर बाप को निकलना होगा, हर शख्स को 13 दिसंबर को इस नालायक नाअहल वोट चोर टोले के खिलाफ निकलना होगा और इंशाअल्लाह निकलेंगे। मैडम, आपने हवाला दिया है एक बयान का इमरान खान के कुर्सियों के हवाले से, तो आपके बयान में ये किनको उन्होंने वादे किया है कि कुर्सी देने वाले होशियार रहें, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? ये कौन सा कुर्सी देने वाले? 5 दिनों से जो इमरान साहब मुंह पे हाथ फेरते हैं, जो ऐलान करते हैं, जिसका नोटिस लेते हैं, उसका तो बेड़ा गर्क हो जाता है। और जिस शख्स के खिलाफ FIR कटवाते हैं, नैब को इस्तेमाल करते हैं, वो शख्स लीडर बन जाता है, वो कारकुन शेर बन जाता है। लेकिन 5 दिन से ये चीज जारी है कि ट्रांसपोर्ट वालों के खिलाफ उनको डराया जा रहा है, उनको खौफ में मुब्तला किया जा रहा है कि आपके खिलाफ FIRें कटेंगी, आपको बंद किया जाएगा, आपको गिरफ्तार किया जाएगा और उसके बाद जो स्टेज की
मुंतजमीन हैं उनको डराने की कोशिश की जा रही है, जो वेंडर्स हैं उनको डराने की कोशिश की जा रही है, जो कुर्सियां देने वाले हैं उनको डराने की कोशिश की जा रही है। तो इमरान साहब, ये है आपकी जहनियत, ये है आपका लेवल जिस पर आप उतर आए हैं, ये है आपकी असली औकात। लेकिन आपकी इतला के लिए अर्ज है, ना ट्रांसपोर्ट वाले डरेंगे, ना कुर्सियां देने वाले डरेंगे, ना कुर्सियां लगाने वाले डरेंगे, ना स्टेज को का इंतजाम करने वाले डरेंगे, ना स्टेज पर खड़े होने वाले डरेंगे, क्योंकि ये जंग उनके हकूक की जंग है, ये उनके मुस्तकबिल की जंग है। और इस 13 दिसंबर के जलसे में हर तबके के लोग, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो ताजिर है, चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो नौजवान है, वो अपने हकूक की जंग लड़ने के लिए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के 13 दिसंबर के जलसे में खड़े होंगे। और मेरा आपको भी मैंने कल मशवरा दिया था कि वोट चोरी के खिलाफ आपको जो मुसल्लत किया गया है, आप इस्तीफा दें और 13 दिसंबर में कुर्सियों लगाने वालों में शामिल हों और इस जंग में अपना भी हिस्सा डालें। अच्छा मैडम, कोरोना के हवाले से किस तरह की एसओपीज का आप क्या जी, तमाम तादाद बुला रही हैं, अगर 6-6 मीटर का फासला रखा जाए तो ये तो फिर पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा जिस तरह से आप देखें। पहली बात, हमने पहले ये कहा, मैंने जैसे पहले कहा कि हम वो लोग हैं, ये वो सियासी जमातें हैं कि जिनके काम और जो जिम्मेदारी से इस मुल्क को तरक्की की राह पर डाला, हम वो सियासी जमातें हैं। आज कोरोना में केपीके में कल आपने देखा कि एक अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने की वजह से 7 बच्चे वहां हलाक हुए और लोग किस तरह हलाकतें हो रही हैं। और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ के लाहौर में बनाए हुए अस्पताल कोरोना सेंटर्स बन रहे हैं, उनकी बनाई हुई लैब्स जो हैं वहां कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं। तो हम बहुत जिम्मेदारी से, हमने हर जगह पर एसओपी का ख्याल रखना है। आप लोगों ने मास्क पहनकर आने हैं। तमाम लोग जो 13 दिसंबर को और रैलियों में और जितने ये सियासी इवेंट्स हो रहे हैं उसमें मास्क पहनकर आएं। ये हमारी क़यादत ने भी ऐलान किया है और मैं आप लोगों के तवस्सुत से भी कहती हूं, वहां भी मास्क आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। हर गेट के ऊपर मास्क प्रोवाइड किया जाएगा, सैनिटाइजर प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन आप लोग जब घरों से निकलें तो आप सब लोग मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये मास्क हमें कोरोना से तो बचाएगा, लेकिन जो कोविड-18 2018 में इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया, वो कोविड-18 से छुटकारा सिर्फ आपकी आवाम की ताकत बचाएगी। इसलिए आप मास्क पहनकर जरूर आएं कोरोना 19 से बचने के लिए, लेकिन उस जलसे में आए जो आपको कोरोना कोविड-18 को इस मुल्क को निजात दिलवाए। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि मरियम नवाज साहब ने कल कहा कि एक इशारा दिया कि इस्तीफों का भी सिस्टम है, क्या पीटीएम में ये कंसेंसस मौजूद है? और दूसरी बात है कि उन्होंने ये भी कहा कि तमाम लोग इस्तीफे क़यादत पर अमल करें, अदरवाइज उनके घरों का गिराव होगा। तो ये खौफ भी है कि कुछ कुव्वत ऐसी है जो अरकान असम्बली को डरा सकती है। देखें, बात बड़ी मुख्तसर है कि एपीसी की जो मीटिंग हुई थी, उस एपीसी की मीटिंग के अंदर जो फैसले थे उसमें इस्तीफे और लॉन्ग मार्च फैसले फाइनल हुए थे, जिसमें पीडीएम की तमाम जमातों ने दस्तखत किए थे। इसलिए ये क्यास आराइयां कि कौन मुत्तफिक है और कौन मुत्तफिक नहीं है, ये सिर्फ वो लोग करते हैं जो डर रहे हैं, जो खौफ में मुब्तला हैं। और अल्लाह ताला के फजलो करम से 2.5 साल में बदतरीन सियासी इंतकाम और सियासी जो फाशिज्म है जिसके जरिए सियासी इंतकाम लिया गया, वो लोग जो ऑलरेडी हैबिचुअल लोटे थे वो जरूर उन्होंने बयानात दिए, चूहों की तरह बिलों में घुस गए। लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से जो फ्रंट लाइन क़यादत है, जो हमारे एमएनएज हैं, हमारे जो फ्रंट लाइन एमपीएज हैं, जो हमारे तर्जुमान हैं, जो हमारी कारकुन हैं, वो सीसा पिलाई दीवार की तरह नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ खड़े हैं। इसलिए इस किस्म की क्या सराइयां जो हैं वो दम तोड़ देंगी। और जैसे मैंने पहले कहा कि हचकोले खाती हुई सिलेक्टेड वोट चोर, आटा चीनी चोर, गैस बिजली चोर, दवाई चोर जो हुकूमत है, 13 दिसंबर को फैसला कुन घड़ी है। और आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा लाहौर के शहरियों को दावत देने इन नालायकों, नाअहलों, चोर टोले के खिलाफ खुद निकलेंगी, जो कायदे आजम इंटरचेंज से लेकर शाहदरा चौक तक रैली निकाली जाएगी। और अगला मरहला रैली का जो होगा वो 10 तारीख को
लाहौर शहर के दूसरे अतराफ में निकलेंगे। मैडम ये बताइएगा कि मरियम नवाज ने गुज़िश्ता मीटिंग के अंदर ये कहा कि फैसला 8 दिसंबर को होगा, तो 8 दिसंबर को ऐसा क्या फैसला होने जा रहा है? इस्लामाबाद बंद जी कर देंगे या इस्तीफे दे देंगे? नहीं, कल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इस्लामाबाद में सरबराही इजलास है और उसमें तमाम जमातों के जो सरबराह हैं वो इकट्ठे बैठेंगे और 13 दिसंबर को ये जो लाहौर का जलसा है, जो फैसला कुन जलसा है, उसके अंदर जो फैसले होने हैं, उसके अंदर जो ऐलानात होने हैं हतमी, उसको एक हतमी शक्ल दी जाएगी और उसकी हिकमत अमली को फाइनलाइज किया जाएगा और उसका ऐलान 13 दिसंबर को इंशाअल्लाह लाहौर के जलसे मीनार पाकिस्तान पर होगा। और जिस तरह कायदे आज़म ने मीनार पाकिस्तान पे वोट की ताकत से पाकिस्तान बना था, इसी तरह मीनार पाकिस्तान में इन वोट चोरों के खिलाफ और इनसे जो छुटकारा है वो भी मीनार पाकिस्तान में 13 दिसंबर को इंशाअल्लाह अच्छा होगा। मैडम ये बताएं कि कल बंदा बड़ा ताबेदार है, ये मैडम मरियम नवाज ने कल अपनी जो सोशल मीडिया वर्कर कन्वेंशन था उसमें कहा था, तो किनके ताबेदार हैं? बिल्कुल जी, देखें ये 72 साल तारीख है कि जो ताबेदारी है, जो वजीर आजम ताबेदारी करे और काम कुछ ना करे, जो वजीर आजम आटा चीनी चोरी करे, जो वजीर आजम गैस बिजली चोरी करे, माफिया की हुकूमत, लेकिन ताबेदारी अगर हो, अगर वोट चोर करके मुसल्लत किया गया हो, सिलेक्टेड हो, उनकी ताबेदारी करे तो मुल्क के अवाम का क्या हाल हो इससे किसी को सरोकार नहीं। लेकिन वो वजीर आजम जो वोट की इज्जत की बात करे, जो अवाम को आटा 35 रुपए और चीनी 52 रुपीज 52 रुपए के ऊपर दे, जो इस मुल्क में 23 घंटे की लोड शेडिंग खत्म करे और जीरो लोड शेडिंग करे, जो इस मुल्क में पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे, नौजवान को उम्मीद दे, सीपैक लेकर आए, नौकरियां दे, रोजगार दे, मईशत को 5.8% पे रखे, लेकिन अगर वो ताबेदार नहीं तो उसकी कोई अहमियत नहीं। ये है वो तहरीक जिसके खिलाफ 13 दिसंबर को लाहौर के अवाम और पाकिस्तान के अवाम निकलेंगे। बड़ी मेहरबानी सर।